ہیں، ہمارے علاقے میں کانفرنسیں ہو رہی ہیں، ہمارے علاقے میں دین کے نام پر جو لوگوں کا مجمع اکٹھا کیا جا رہا ہے، اس میں بہت ساری کمیاں، کوتاہیاں اور خامیاں ہیں جن کا وقت رہتے ازالہ کیا جانا انتہائی ضروری ہے۔ NB میڈیا یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ سے بھی کہ بچوں کو پڑھانا ہے سب سوچ رہے ہیں، حضرت شعر دیکھیے گا، بچوں کو پڑھانا ہے یہ سب سوچ رہے ہیں، قرآن پڑھانا ہے مگر یہ نہیں سوچا، قرآن پڑھانا ہے مگر یہ نہیں سوچا۔ آئیے لیجئے بلا کسی تاخیر کے ہم سب کے چہیتے ہر دل عزیز مقرر خطیب با کمال جناب حضرت اقدس مولانا سلمان کوثر صاحب نعمانی دامت برکاتہم العالیہ، ڈائریکٹر CPS اسکول دولت پور ارریہ تشریف لائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وبہ نستعین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَانْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ صدق اللہ العظیم۔ معزز علماء کرام، بزرگان محترم، نوجوان دوستو، عزیز بچوں، ہم لوگ بہت ہی مقدس محفل میں بیٹھے ہیں۔ ایسی محفلیں یقیناً اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ہم سب کے لیے ایک بہترین تحفہ ہے اور عطیہ ہے۔ صرف 10 سے 15 منٹ آپ کے بیچ گفتگو کرنی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ زیادہ لمبی چوڑی تمہید کے بجائے سیدھے سیدھے مدعا پر آتا ہوں۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ پوری توجہ سے میری باتوں کو سنیں۔ ممکن ہے کہ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ آمین۔ سب سے پہلے ہم اور آپ استغفار کریں، کیونکہ ہم لوگوں نے اب تک بہت سارے گناہ کیے ہیں۔ آپ بھی اپنے دل میں ٹٹول کر دیکھیے، میں بھی دیکھتا ہوں، اس لیے توبہ کیجئے۔ اچھا، توبہ کے لیے گناہگار ہونا ضروری نہیں ہے۔ علماء کرام بیٹھے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ جو بندہ گناہ کر رہا ہو یا کیا ہو وہی توبہ کرے، بلکہ جو گناہ نہیں کیا ہو یا نہیں کر رہا ہو وہ بھی توبہ کرے گا تو اس کے فضائل ہیں۔ چلیے ہم لوگ استغفار کرتے ہیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب، میرے ساتھ ساتھ پڑھیے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ دوستو، چاہے دین کا کام ہو یا دنیا کا کام ہو، اگر اس کام میں نظم و ضبط نہ ہو تو وہ کام اچھا نہیں ہوتا ہے، کام خراب ہو جاتا ہے۔ وہ کام جو ہم کو فائدہ دینا چاہیے فائدہ کے بجائے نقصان دے جاتا ہے۔ اچھا سوچئے، اگر فائدے کی چیز ہی ہم کو نقصان کرنے لگے تو یقین جانیے کہ ہمارا برا حال ہوگا۔ آئیے مثال سے سمجھتے ہیں۔ بخار کی دوائی ڈاکٹر دیتا ہے، گئے، موسم ابھی بدل رہا ہے، لوگوں کو بخار آ رہا ہے، گئے ڈاکٹر کے یہاں بخار کی دوائی کے لیے، بھائی بخار آ رہا ہے، کپ کپی اور جاڑا کے ساتھ نزلہ زکام بھی ہے۔ ڈاکٹر نے دوائی دیا، اس دوائی کو لینے کے بعد، استعمال کرنے کے بعد آپ کی بیماری میں افاقہ ہونے کے بجائے بیماری بڑھنے لگے تو آپ کیا کریں گے؟ دوسرے ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، پھر وہ دوائی دے تو بیماری گھٹنے کے بجائے بڑھنے لگے۔ یعنی بیماری کے لیے جو دوا بنائی گئی ہے، جو آپ کو فائدہ پہنچا سکے، وہی دوا آپ کو نقصان کرنے لگے۔ جو دوائی آپ کے لیے بنی ہے کہ آپ کو صحت دے گی، مگر وہی دوائی آپ کو نقصان کرنے لگے تو پھر آپ سمجھ جائیے کہ آپ کی جان خطرے میں ہے۔ میرے ساتھ ساتھ بولیے، آپ کی جان خطرے میں ہے۔
ठीक इसी तरह दीनी काम, दीनी उमूर बग़ैर नज़्म व ज़ब्त के, बग़ैर सही सोच और रहनुमाई के अगर कोई दीनी उमूर को अंजाम देने की कोशिश कर रहा है और उसमें कमियां और कोताहियां हो रही हैं, बाज़ कमियां और कोताहियां इतनी ख़तरनाक होती हैं कि जिनका तज़किरा करने से मेरी ज़बान जलेगी और आप सुनेंगे तो आपका कान जलेगा। तो ऐसे दीनी काम जिससे दीन को फ़ायदा पहुंचना चाहिए, उसी काम से अगर दीन को नुकसान पहुंचे तो आपका ईमान खतरे में है। दवाई फ़ायदा के बजाय नुकसान करे तो जान खतरे में है। दीनी काम जो दीन को तक़वियत बख्शे, जो मुआशरे की इस्लाह के लिए रहनुमा कदम बन कर के उभरे, वही काम आपके लिए नुकसानदेह हो जाए, दीन को नुकसान पहुँचाए, दीन को गैरों की नज़र में बदनाम करे तो ईमान खतरे में है। मैं कहना ये चाहता हूँ कि कोई भी काम है उसका एक तरीक़ा होता है, उस तरीक़ा पर अगर काम नहीं करेंगे तो फ़ायदा की उम्मीद बिल्कुल मत रखिए, नुकसान ज़रूर होगा, फ़ायदा हो कि ना हो। आज मैं कहना ये चाहता हूँ कि ये जो हमारे इलाके में जलसे हो रहे हैं, हमारे इलाके में कॉन्फ्रेंसें हो रही हैं, हमारे इलाके में दीन के नाम पर जो लोगों का मजमा इकट्ठा किया जा रहा है, इसमें बहुत सारी कमियाँ, कोताहियाँ और खामियाँ हैं जिनका वक्त रहते इज़ाला किया जाना इंतहाई ज़रूरी है। अगर इसके इज़ाला की फ़िक्र नहीं करेंगे तो यकीन जानिए 5-10 साल के बाद बहुत शदीद नुकसान पहुंचने का ख़तरा ही नहीं बल्कि यकीन है। इसको आप मेरी पेशीन गोई समझ लीजिए। मैं तकरीबन 15 साल से चीख चीख कर लगभग जलसों में कह रहा हूँ। 2007 से मैं जलसों में जाता हूँ, चीख चीख कर कहता हूँ, दर्द दिल के साथ कहता हूँ कि कुछ चीज़ों पर कंट्रोल कीजिए, तब जा कर के जलसा नफ़ा बख्श होगा, वरना नफ़ा बख्श नहीं होगा। उन चीज़ों में से कुछ चीज़ें आपके सामने मैं जाहिर करना चाहता हूँ। जब भी जलसा करवाने का इरादा हो तो संजीदा लोगों को मशवरे में शामिल कीजिए, तजर्बाकार पुराने मुअम्मर उलमा को शामिल कीजिए। नौजवान जो फज़ला हैं हमारे, ये बावजूदे के इल्म रखते हैं, बावजूदे के शूर रखते हैं, मगर जवानी की उम्र जोश और वलवला से भरा हुआ होता है। जोश और वलवला को मद्देनज़र रखते हुए जब ये लोग कुछ काम करते हैं, हालांकि इनकी नीयत ख़राब नहीं होती, नीयत ठीक होती है, मगर काम करने में चंद गलतियां हो जाती है। तो मैं चाहता हूं कि उन गलतियों को सुधारा जाए, उन गलतियों की इस्लाह की जाए, ताकि हमारे ये जलसे, हमारी ये कॉन्फ्रेंसें हमारे लिए ज़्यादा से ज़्यादा नफ़ा बख्श हो। नंबर 1, जब भी हम जलसा करवाने का इरादा करें तो सबसे पहले नीयत इस बात की करें कि ये जलसा अगर इस्लाह मुआशरा के नाम पर कर रहे हैं तो इससे हमारे मुआशरे की इस्लाह हो। इस्लाह मुआशरा जानते हैं किसको कहते हैं? मुआशरे में जो खराबियां हैं, बुराइयां हैं, कमियां हैं, कोताहियां हैं, कुरान और हदीस की रोशनी में उन कोताहियों को ख़त्म करने की तदबीरें आपको बताई जाएं, हमको बताई जाएं, हम उन पर अमल करें तो मुआशरे की इस्लाह होगी। यानी मुआशरे में जो कमियां हैं उनको दूर करने का नाम इस्लाह मुआशरा है। नंबर 1, सबसे पहले नीयत को दुरुस्त करें, नीयत को ठीक करें। नंबर 2, इश्तिहार की जब तरतीब दें तो उनमें वक्त के हिसाब से उलमाए किराम का नाम दें। ज़रूरी नहीं है कि सारे लोगों का नाम देना ज़रूरी है। मौलवी सलमान से मुझको ताल्लुक़ है, डालिए मौलवी सलमान दौलतपुर। आपको नैयर भारती साहब से ताल्लुक़ है, डालिए नैयर भारती साहब का नाम, काकन।
NB मीडिया, तो ऐसा नहीं करना है। इत्तेफाक राय से चंद उलमा का नाम इश्तिहार में देना है, कम से कम उलमा का नाम देना है, ज्यादा से ज्यादा 4 उलमा काफी हैं। नाम डालने से पहले उनसे बात कर लेनी है, पक्की बात कि आपको आना है, और वक्त भी बता देना है कि आपका वक्त 9 बजे से 10:30 बजे तक रहेगा, ताकि वो वक्त से पहले पहुंच जाए। उलमा भी इस बात का ख्याल रखें और आवाम भी इस बात का ख्याल रखे कि बीच में ऐरे गैरे लोगों को घुसाकर जलसा का कीमती वक्त बर्बाद ना किया जाए, और अनाउंसर साहब को ये तंबीह कर दी जाए कि मुख्तसर और जामे तारुफ के साथ किसी नात खां को बुलाया जाए और मुकर्रिरीन को मदऊ किया जाए, वक्त ज़ाय ना किया जाए। नात खां साहब को पहले ये बात बता दी जाए, उसके जहन नशीन कर दी जाए कि एक नात पढ़ने के लिए आपको 5 से 7 मिनट या 10 मिनट का ज़्यादा से ज़्यादा वक्त मिलेगा, इससे ज़्यादा नहीं। याद रखिए, ये जलसा की महफिल, इसमें नात खानी बराए नाम होती है, ये हुसूल बरकत के लिए होती है। बातें समझाने के 2 तरीके हैं। एक तरीका वो है जिस तरीके पर मैं बात कर रहा हूं, एक अंदाज है जो आमतौर पर लोग बोलते हैं, एक अंदाज मुनज़्ज़म अंदाज में, यानी तरन्नुम के साथ, लय के साथ बात को समझाई जाए, किसी वाक़िया को, किस्सा को, कहानी को नज़म के अंदाज में मुतरन्नम आवाज़ के ज़रिए से पहुंचाई जाए। तो बारहा ये तजर्बा किया गया है, जो बातें मुतरन्नम अंदाज में यानी पढ़ करके नज़म के अंदाज में सुनाई जाती है, वो बातें कम असर होती है। सुनने में तो बड़ी भली मालूम होती है, अच्छी होती है, लोग वाह वाह करते हैं, और वहाँ भी वाह वाह कर देते हैं जहाँ आह आह करना चाहिए। समझते नहीं है सुबहान अल्लाह, बीबी फातिमा से कोई औरत नहीं रही माशा अल्लाह, मतलब बीबी फातिमा जैसी कोई औरत समाज में, मोहल्ले में नहीं रही थी। अफसोस की बात है कि नहीं? बोलना चाहिए हाय अफसोस। वहां भी सुबहान अल्लाह, माशा अल्लाह, बहुत खूब, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। तो सोच समझ करके बोलना चाहिए, है ना? बोलिए भाई, गलत बोल रहा हूं तो बोलिए, सोच समझ करके बोलिए। और नात खानों की बैटरी चार्ज करने के लिए हर वक्त उनके साथ बोलते रहिए। ये असल में हम लोग मिले जुले मुआशरा में रहते हैं, बगल में हमारे रजा खानी भाई भी रहते हैं, उनके स्टेजों से ये बला और मुसीबत हमारे स्टेजों में आ गई। पहले के नात खां बड़े संजीदा होते थे, संजीदगी के साथ नाते नबी गुनगुना कर अपनी जगह लेते थे। बीच में 1-2 जुमले मुख्तसरन अगर कोई बात समझाने की होती थी तो समझा दिया करते थे। मेरी इस गुफ्तगू से मैं जानता हूं कि बहुत सारे लोगों को तकलीफ होगी, और यकीनन होनी भी चाहिए, लेकिन मैं फिक्र नहीं करता। मैं अल्लाह और उसके रसूल की बातें पहुंचाने के लिए आया हूं। वल्लाह कहता हूं, दूसरी कोई बात मेरे जहन में नहीं है। मेरी दिली ख्वाहिश है कि दीन के नाम पर मुनाकिद किया जाने वाला जलसा, दीन के नाम पर मुनाकिद किया जाने वाला प्रोग्राम, इससे अगर दीन का फायदा ना हो, मुआशरे की इस्लाह ना हो, तो फिर कौन सा तरीका हम अपनाएंगे? आप ही बता दीजिए, कौन सा तरीका होगा? कैसे मुआशरे की इस्लाह होगी? तो मैंने कहा, नंबर 1 नीयत को दुरुस्त करें, नंबर 2 कम मुकर्रिरीन को बुलाएं और उसके वक्त और मौजू को मुतय्यन कर दें, नंबर 3 बाजार न लगने दें। 2 काम करें, या तो बाजार खूब लगाएं, एक भी औरतें ना आए, बाजार लगवाइए, औरतें ना आए, औरतें आए तो बाजार ना लगवाइए। दोनों में से एक चीज चुनिए। आज ये फैसला कीजिए कि अगर आप ये चाहते हैं कि बाजार लगेंगी, ये मेले ठेले रंग रेलियां होंगी, औरतें आएंगी, लोग आएंगे, चंदा देंगे, यकीन जानिए खूबसूरत से खूबसूरत तरीन मस्जिद बन जाएगी, मगर पक्के और सच्चे नमाजी नहीं मिल पाएंगे। मस्जिद रूह से खाली होगी,
صرف مسجد کی شکل ہوگی، مسجد کا ڈھانچہ ہوگا، اس کی خوبصورتی ہوگی، اخلاص کے ساتھ ایسا بندہ نماز پڑھنے والا مسجد میں کم ملے گا۔ اس لیے فکر کیجئے، 2 سال میں مسجد نہیں بنے گی، 10 سال میں بنے گی۔ میں یہ نہیں کہتا کہ مسجد کا چندہ مت کیجئے، چھت ڈھلائی کے لیے آپ اناؤنسمنٹ مت کیجئے، لوگوں کو، علماء کو مت بلائیے، یہ میرا مقصد نہیں ہے۔ تو تیسری بات میں یہ عرض کیا کہ بازار مت لگائیے، بازار لگاتے ہیں تو عورتوں کو آنے مت دیجئے، عورتیں آئیں گی تو بازار کو آنے مت دیجئے، دونوں میں سے ایک کام کرنا ہے آپ کو۔ اور عورتوں کے لیے یہ شرائط طے کر دیجئے کہ جو بھی عورتیں جلسہ سننے کے لیے آئیں گی ان کو باحجاب آنا ہوگا، ان کو پردہ کے ساتھ آنا ہوگا، جلباب کے ساتھ آنا ہوگا۔ قرآن کی یہی تعلیم ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی تعلیم ہے۔ دین کے نام پر بے حیائی بدترین بے حیائی ہے، اس سے بڑی بے حیائی اور کیا ہو سکتی ہے؟ ہماری بیٹی، ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں جلسہ کے نام پر، دین کے نام پر گھر سے نکلیں اور مارکیٹ کریں، غیر محرم اس کا چہرہ دیکھے، میرے لیے شرم کی بات ہے، میرے لیے غیرت کی بات ہے۔ کہاں میری غیرت چلی گئی؟ بعض جلسوں میں لڑکیوں کے ساتھ زیادتی کے واقعات بھی سامنے آئے، دست درازی کے واقعات بھی سامنے آئے، پنچایتیاں بھی ہوئی، اور غیروں نے مذاق بھی اڑائے کہ دیکھو جو قوم نگاہیں نیچی رکھنے کی بات کرتی ہے، جو قوم غیر محرموں کو دیکھنے سے بچنے کی ترغیب دیتی ہے، آج ان کے دینی جلسوں کا حال یہ ہو چکا ہے۔ یہ ہمارے لیے شرم کی بات ہے۔ اور چوتھی بات میں یہ عرض کرنے لگا ہوں کہ جب بھی کوئی جلسہ منعقد کریں تو ان جلسوں میں آنے والے مہمان کے لیے آپ ان کا مزاج پوچھ لیں کہ وہ کس مزاج کے ہیں، وہ کس طرح رہنا سہنا پسند کرتے ہیں، اس حساب سے ان کا انتظام کریں۔ میں نے جو آیت آپ کے سامنے تلاوت کی، میں اس کی تشریح کر کے آپ سے رخصت ہو جانا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَانْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ، اور نکاح کر دو ان مردوں کا، ان عورتوں کا جو بے نکاح ہیں۔ حضرت معذورت کے ساتھ اس کی تشریح کر کے میں نکل جاؤں گا۔ ان عورتوں اور مردوں کا نکاح کر دو جو بے نکاح ہیں، چاہے وہ کنوارے بے نکاح ہیں یا رانڈ یا رانڈوا بے نکاح ہے، یعنی بیوہ عورت یا ایسا مرد جس کی بیوی مر گئی ہو، تو اس کے جو وارث ہیں، اس کے جو ولی ہیں، ان کے لیے ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا وَانْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ کہ بے نکاح مرد اور عورتوں کا نکاح کرو، یہ حکم ولی کو دیا ہے۔ اس حکم سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حکم ولی کو دیا گیا ہے، نکاح ولی کروائے گا۔ اس جملے سے میں نوجوان لڑکوں کو، نوجوان لڑکیوں کو ایک پیغام دے کر رخصت ہونا چاہتا ہوں۔ نوجوان لڑکے منمانی طریقے سے اپنی شادی کی فرمائش کسی خاص متعین غیر مناسب غیر مہذب لڑکی کے بارے میں سیٹ کر لیتے ہیں اپنے من میں، پھر ماں باپ کو پتہ چلتا ہے، ماں باپ اس سے خوش نہیں ہوتے۔ اس لڑکی کے خاندان میں کوئی ایسی بات ہوتی ہے جو اس کے لیے نازیبا ہوتی ہے، یا تو دین کے معاملے میں کمتر، یا کوئی ایسی بات ہوتی ہے جو لڑکا کے والدین کو ناپسند ہوتی ہے، اور لڑکا وہی ضد کرتا ہے کہ میری شادی وہی ہونی چاہیے۔ تو ایسے نوجوانوں سے میں گزارش کرنا چاہوں گا کہ نوجوانوں ایسی ضد مت دھرو، ہاں اپنی پسند، اپنی فرمائش ماں باپ کے سامنے مہذب انداز میں ضرور رکھو کہ میرے ابا مجھ کو وہی لڑکی پسند ہے، اور ماں باپ کو چاہیے کہ بیٹے کی پسند کا خیال رکھ کر کے اگر مناسب ہو، اگر کوئی شرعی عذر نہ ہو تو اس لڑکی سے اس کا نکاح کرا دیں۔ اور بیٹیوں کے لیے، لڑکیوں کے لیے اسی آیت سے ایک پیغام ملتا ہے کہ لڑکیوں کا نکاح بھی اس کا ولی کرائے گا۔
हदीस पाक के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अय्यमा इमरातिन नकहत बगैर इज़्नि वलीहा फनिकाहुहा बातिलुन फनिकाहुहा बातिलुन, कि जो कोई औरत अपने वली की इजाज़त के बगैर निकाह कर ले उसका निकाह बातिल है, उसका निकाह नहीं हुआ, उसका निकाह मुनक़िद नहीं हुआ। लड़कियों, मेरी बहनों, मेरी बेटियों, दर्द दिल के साथ पैगाम दे रहा हूं, आप कोई ऐसा कदम ना उठाएं कि आपकी वजह से आपके वालिदैन को, आपके ख़ानदान वाले को सर झुका करके चलना पड़े। आपकी एक हरकत की वजह से जिस बाप ने आपको 18 साल 20 साल तक लाडों में पाला है, जिसने आपकी हर ज़रूरी गैर ज़रूरी फरमाइश को पूरा किया है, आपकी ज़बान से जो बात निकल गई, आपके बाप ने, आपकी माँ ने कोई परवाह नहीं किया, आपकी फरमाइश को पूरी किया, आपकी हर भलाई के लिए उन्होंने अपने खून पसीने को एक कर दिया। क्या आखिरी वक्त में आपके निकाह की जब बात आई वो गलत जगह आपकी शादी करवाएगा? मेरी बेटियों, मेरी बहनों, उम्मत मुस्लिमा की औरतों, इस बात को ध्यान में लाओ। ये खानदान के लिए शर्म और इज्जत को बर्बाद करने का सबब बनेगा। हमारी बहुत सारी बेटियां बहनें भाग जाती हैं और वीडियो बनाकर व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर डाल देती है कि मैं आ गई हूँ इनके साथ, मैं बालिग हो गई थी, मेरी मर्जी, ये लड़का पसंद था, आप नहीं करा रहे थे शादी इसलिए मैं शादी कर ली। इनके ख़ानदान वाले पर केस मत कीजिएगा, ये मत कीजिएगा, वो मत कीजिएगा। मुसलमान की बेटियों, मुसलमान की बहनों, यही दिन देखना बाकी रह गया था। तौबा करो, तौबा करो। वालिदैन बेहतरीन जगह शादी करवाएंगे और भाग करके शादी करने के चंद नुकसान मुख्तसर तौर पर आपको बतला करके मैं अपनी बात ख़त्म करूंगा। नंबर 1, जिस लड़का को आपने दिल से चाहा, मेरी बहनों बेटियों गौर से सुनो, जिस लड़का को आपने दिल से चाहा उसके साथ भाग करके आपने शादी रचाई, वो लड़का आपको अगर कभी धोखा दे देता है, आपके साथ फराड कर देता है, तो आपका नैहर का, मैके का रास्ता हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। आपके लिए नैहर में, मैके में कोई जगह नहीं रहेगी, क्योंकि माँ बाप की गर्दन झुकाकर आप घर से भागी थी, तो किस मुंह से आप उस घर में दोबारा आएंगी? तो आपके लिए मरना ही सबसे बेहतरीन ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि माँ बाप खफा होंगे, लड़का उधर आपको मारेगा, पीटेगा, जुल्म व तशद्दुद करेगा, आपके लिए कोई रास्ता नहीं रहेगा। इसलिए ऐसी हरकत मत करो। अगर माँ बाप की मर्जी के मुताबिक शादी करोगी, अगर वहाँ कोई तकलीफ होगी तो माँ बाप हाथों हाथ लेगा। इस बात को आप ध्यान में रखें। नौजवानों से ये गुजारिश कि नौजवान आप शादी सुन्नत तरीके पर करें। हमारे कुछ बावले नौजवान हैं जो समझते ही नहीं शादी भी एक इबादत है। जितने अंबिया इकराम इस धरती पर आए, जल्दी जल्दी बतला रहा हूँ, तमाम ने शादी की सिवाय एक नबी के, हज़रत यहया अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम, जो बग़ैर शादी के ही कत्ल कर दिए गए थे। तमाम अंबिया ने शादी की। तमाम नबियों की सुन्नत है। सुन्नत को सुन्नत तरीके पर अदा करेंगे तभी वो सुन्नत अदा होगी। शादी के कारण पर लिखते हैं अन्निकाहु मिन सुन्नती फमन रग़िबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। क्या उस सुन्नत पर आप अमल करते हैं? अरे अवाम की क्या बोलूं, हमारी बिरादरी ने तो चौपट कर दिया है, अवाम का जीना मुश्किल कर दिया है। जहेज़ के खिलाफ तकरीरें करेगा, जहेज़ के खिलाफ मकाले लिखेगा, जहेज़ के खिलाफ नज़में पढ़ेगा, गज़लें पढ़ेगा, लेकिन जब खुद की शादी की बारी आएगी बेशर्म बन जाएगा, फरमाइशें करेगा। सुन्नत के मुताबिक एक काम नहीं, हाथ में मेहंदी रचा कर जाएगा बारात। मौलवी साहब, बारात का कोई कॉन्सेप्ट नहीं। पूछिए मौलवी साहब, आप पूछिए मेहंदी लगाए? हाँ, वो बच्चा सब लगा दिया। सीना पे सवार होके बंदूक के नोक पर मेहंदी लगाया था कि नहीं लगाइएगा गोली मार देंगे। अरे बदमाशी उसके दिल में है, लगाने दिया तब ना मेहंदी लगाई कोई, या कोई लगाया, तो ये बदमाशी उसके दिल में है। और पटाखे छोड़े जा रहे हैं शादियों में, पटाखे छोड़े जा रहे हैं। ओ यार दोस्त पटाखा छोड़ दिया है, कैसा दोस्त बनाए हो? मौलवी हो, मौलवी का बेटा मौलवी, तबलीगी का बेटा हो, ये तबलीगी बाप, उसको शर्म नहीं आती? 4 महीना लगाया हुआ बेटे की शादी में पटाखे फोड़े जा रहे हैं। उन्हें कहना चाहिए बेटा या तो पटाखा फटेगा या मैं रहूंगा, दोनों में से एक चुन ले। मौलवी का बेटा मौलवी है, हाफिज है, अल्लाह जाने किस मनहूस घड़ी में इसको तकमीले हिफ्ज की डिग्री दी गई है।
किस मनहूस घड़ी में इसको आलमियत की फजीलत की डिग्री अता की गई है, समझ में नहीं आता है। मौलवी की शादी में पटाखे फोड़े जा रहे हैं, डूब के मरो स्टेज पर तकरीरें करते हो। अगर ये मौलाना लोग सुधर जाएं, ये हुफ्फाज सुधर जाएं, हमारे सारे ऐसे नहीं भाई, इस्तिस्ना हर चीज़ में है, तो इंशाअल्लाह दुनिया सुधर जाएगी। मैं इशारा समझ रहा हूँ, बात अधूरी रही, इंशाअल्लाह कभी मौका मिला तो पूरी होगी। इन्हीं चंद चीज़ों का ख्याल रखिए, जल से एक तरतीब से करवाइए, मझे हुए उम्र दराज उलमा से मशवरा लेकर के कीजिए ताकि बदनज़मी ना हो, लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े, अवाम को फ़ायदा हो। शादी ब्याह समाज की एक बुनियादी ज़रूरत है, सबसे पहले इसको ठीक कीजिए, खुद ठीक हो जाइए, दुनिया ठीक हो जाएगी। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अगर ज़्यादा वक्त ले लिया तो माज़ूरत चाहता हूँ, माफ़ कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, आपने फुल वॉच पूरा वीडियोस देखा और वीडियोस आपको पसंद आया होगा। पसंद आ जाए तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरी हौसला अफजाई फरमाएं। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला आपको दोनों जहान में कामयाबी अदा फरमाए, शाद व आबाद रखे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में और एक अच्छे और शानदार वीडियोस आपके लिए लेकर हाजिर होऊंगा। तो इजाज़त दीजिए, फिर मिलते हैं दूसरी वीडियोस में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।